Good morning, students. Hope you understand the concept of production and production management now, and what are the various activities that production management perform, and what are the factors that affect its process. Now, you always heard the word operation management nowadays, or production and operation management. What exactly operation management is? Basically, production management is more used, you can say, for a system where tangible goods and products are there, जिनको आप देख सकते हैं उस सिस्टम में जो यूज़ होता है, दैट इज़ अ प्रोडक्शन system what is used, whereas operation management is more frequently used where various inputs are transformed into intangible services. Okay, operation management is a word which is used nowadays, we can say, and production management is the term which is used earlier in our history. Nowadays, we are using a word that is operation management for both tangible or intangible goods. Okay, and basically, in production management, it is concerned with manufacturing, but operation management is concerned with service. Production management produce tangible goods, operation management produce intangible goods. So, job use less labor, more equipment in case of production management, and there is no customer participation is there. But in case of operation management, we use more labor and less equipment, and frequent customer participation is there, like insurance, you can say. ठीक है, in insurance, in library, we are doing operation management. But in manufacturing unit where you are producing tangible goods, suppose you are manufacturing a car, that is a production management. But now the line of difference is blur, and we are using a new term, that is operation management, for both goods and services. Clear? Now, the types of production system. Basically, production system can be classified in any of these form. Okay, in the sense of types of production, if we classify in this sense, you see, we have three types: job shop, batch, and mass production. Then, if we classify with the size of plant, we have large size plant, medium size, and small size plant. Then, types of product, we have a complex to manufacture and simple to manufacture product. In physical law of material, ठीक है, फिजिकल फ्लो है बेटा, ये इसमें एफ मिस हो गया है, इसे फ्लो लिखिएगा. फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल, automated flow, semi automatic, manual flow is there. In nature of order and demand pattern, stable demand and unstable demand, we can say. And variety of job, we have more variety and one variety of job. Clear? So these are the basis of classification, but we are here study the classification on the basis of production system. So we have this classification. Basically, production system is classified into two: continuous production system and intermittent production system. In case of continuous production system, we have mass production and process production. And in case of types of production system, in intermittent production system, we have a project production flow, job production flow, and batch production flow. Project generally comes as a separate heading also. Sometimes you can classify it as a separately, or you want to, you can include it into intermittent also. Clear? Now, see, you can classify production system if you wish, not in two terms, intermittent and continuous. You can write it like four system, like continuous, mass, batch, and job shop. You can do that also, or you can write only mass, batch, and job. See what exactly the difference is. In case of
this this is what is this? This is a volume, and this is product variety. Okay, if volume is high, see, if volume is high and product variety is low, see here, product variety is low but volume is high, then we go for the continuous manufacturing system. And if certain varieties increase, if our variety increase but volume is also high, then it is a mass production system, like car you can say. ओके, आप कार में देखते हैं वेराइटीज़ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी वेराइटीज़ है, बट आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दैट इज़ अ मास। देन बैच, जिसमें देखिए नीचे आते आते आप देख रहे हैं बैच, बैच में क्या हो गया, वेराइटी बढ़ गई, प्रोडक्ट वेराइटीज़ इंक्रीज, इतनी वेराइटीज़ है इसमें, बट वेराइटी जहाँ बढ़ी वहाँ वॉल्यूम कम हो गया। लाइक मेडिसिन यू कैन से, ठीक है, बैचेस में बनती है, हर बैच एक बैच दूसरे बैच से अलग होता है, ठीक ना। अब आपकी प्रोडक्ट वैरायटी और कम हो गई, मैं सॉरी प्रोडक्ट वैरायटी बढ़ गई, तो आपका वॉल्यूम और कम हो गया। लाइक टेलर शॉप, आप देखते हैं हर किसी का साइज़ अलग अलग है, तो आपके लिए वो अलग अलग स्टिच कर रहा है नाप के, तो उसका जो होगा वैरायटी क्या ज़्यादा है, मगर काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो एक दिन में 100-50 ऐसे नहीं बना रहा है, वो एक दिन में आपके जो है 20 ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा या 25 बना रहा है। क्लियर? तो इट मीन्स अगर आप वेराइटी बढ़ा रहे हैं, if you are giving a variety in your production, your volume will down, and if your volume is high तो product is standardized. ओके, सेम प्रोडक्ट आप बना रहे होंगे और वो उसका हाई वॉल्यूम में आप बना रहे होंगे, तो वो आपका क्या है, कंटिन्यूस एंड मास है। नाउ वन बाय वन, फर्स्ट इज अ फ्लो और अ कंटिन्यूस सिस्टम। फ्लो और कंटिन्यूस सिस्टम में क्या होता है, continuous flow production situation are those where a facility are standardized as to routine and follow since input are standardized. Therefore, a standard set of process and sequence of process can be adopted. Means continuous flow production में क्या है, ऐसी सिचुएशन जहाँ स्टैंडर्डाइज रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मीन्स आपका जो रूट है, जो प्रोडक्शन इनपुट से आउटपुट होने का में कन्वर्ट होने का जो पाथ है वो सिमिलर है, फ्लो में चल रहा है, क्योंकि इनपुट आपके सारे स्टैंडर्डाइज हैं, एक जैसे इनपुट आपके यूज़ हो रहे हैं, और आप ठीक है, और प्रोसेस और सीक्वेंस जो होता है वो भी आपके स्टैंडर्ड प्रोसेस को ही यूज़ कर रहा है। कंटिन्यूएशन में जब आप फ्लो कर रहे हैं मीन्स आपका इनपुट जा रहा है और उसके बाद सीधे आपके आउटपुट आ रहा है, ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी में अगर आप किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मगर वैरायटी आपकी क्या है, कम है, ठीक है, जैसे माना आप देखोगे ब्रिटानिया ब्रेड में चले जाइए, ब्रिटानिया फैक्ट्री में जाइए, वहाँ ब्रेड बन रही, तो क्या है, कंटिन्यूएशन में बन रही है ना, बिस्किट्स आप देखेंगे कंटिन्यूएशन में बन रहे हैं, वैरायटी कम है, ठीक है, आपकी एक प्लांट में हो सकता है सिर्फ 3 ही टाइप के बिस्किट बन रहे हो, जैसे आप रुद्रपुर के प्लांट में जाइए तो वहाँ पर क्या है, सिर्फ आपके 2 या 3 टाइप के बिस्किट बन रहे हैं, दूसरा प्लांट उसका कहीं और सेट है जहाँ दूसरे टाइप के बिस्किट बन रहे हैं मगर लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन इज कैरीड ऑन अ कंटिन्यूसली फॉर स्टॉक इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। मीन्स यहाँ पर वही प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन में बनते हैं जिनकी डिमांड हमेशा रहती है, जिनका प्रोडक्शन रेट उनकी डिमांड रेट से कम है। मीन्स डिमांड का जो रेट है वो बहुत हाई है बट प्रोडक्शन रेट इतना हाई नहीं है, तो ये स्टॉक करने के पर्पज से भी मैन्युफैक्चर करते हैं। क्लियर? नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स of continuous production system. Students, this is very important for your production subject, and we have to study planning and controlling for each production system. This is your complete course you can say. So listen it very carefully. Now the characteristics. The volume of output is largely okay, and goods are produced in anticipation of demand. आपका जो आउटपुट है, वॉल्यूम जो है वो लार्ज है, और आपकी जो डिमांड है आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अच्छी खासी डिमांड होगी, पहले से आपको मालूम है,
द प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड ऑपरेशन सीक्वेंस आर स्टैंडर्डाइज, मीन्स एक आइडेंटिकल पाथ जो आपने बना रखा है उसी को वो फॉलो करें, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज विद द कस्टमर डिमांड। एंड स्पेशल पर्पस ऑटोमेटिक मशीन्स आर यूज्ड, इस तरह के प्रोडक्शन में स्पेशल पर्पस ऑटोमेटिक मशीन्स आप बनवाते हैं, मीन्स जो सिर्फ उसी प्रोडक्ट को बना सकती है। जैसे हमने गए पार्ले जी का बिस्किट बन रहा है, तो पार्ले जी के बिस्किट में आप देखते हैं ऊपर से प्रिंट होके आता है पार्ले जी लिखा हुआ आ रहा है, तो इट मीन्स उसके लिए स्पेशलाइज मशीन बनी है, वो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे उनके हर बिस्किट में वो सेम लिख के आ रहा है। ठीक है, तो ये मशीनें स्पेशली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बनाई जाती है, डिज़ाइन की जाती हैं। ठीक है, दैट्स वाई वी कैन से दे आर यूजिंग अ स्पेशल पर्पस मशीन्स and machine capacity are balanced so that material are fed at the one end and the process and finished product is received at the other end। जो भी आपको बताया था, इतनी स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होती है, मशीन कैपेसिटी से ऐसे डिज़ाइन होती है कि आप एक जगह इनपुट डाल रहे तो फाइनली यू विल गेट द आउटपुट। एंड फिक्स पाथ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं, क्योंकि प्री डिटरमाइन सीक्वेंस है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, आप रोलर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट एंड ऑल ये सब यूज़ करते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। यू डोंट नीड टू यूज़ एनी मैनुअल कंट्रोल। एंड प्रोडक्ट लेआउट डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द सेपरेट लाइन फॉर ईच प्रोडक्ट इज कंसिडर। तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट लेआउट यूज़ होता है, मीन्स लेआउट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द मशीन्स इक्विपमेंट्स एंड ऑल इन द फैक्ट्री। तो जब प्रोडक्ट लेआउट की बात आ रही है तो इट मीन्स आप प्रोडक्ट को ध्यान में रख के सारी मशीनों को लगाते हैं लाइन से कि किसके बाद क्या काम होगा। ओके, एक होता है प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट में क्या है, आप प्रोसेस को देख के लगाते हैं और जिस प्रोडक्ट को जिस प्रोसेस की ज़रूरत है वो उस पर्टिकुलर मशीन में चला जाता है। बट यहाँ क्या प्रोडक्ट लेआउट है विच इज़ वेरी फिक्स्ड एंड विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज, मीन्स उसमें एक ही वो प्रोडक्ट बन सकता है, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो वो होता है हमारा प्रोडक्ट लेआउट। क्लियर? नाउ एडवांटेज, हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस द साइकिल टाइम, क्योंकि मास प्रोडक्शन है, स्पीड में बन रहा है। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्शन साइकिल टाइम होता है या जिसको लीड टाइम भी हम कहते हैं, दैट इज़ वेरी लो, तो आप कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट बना के देते हैं। देन हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ड्यू टू लाइन बैलेंसिंग, क्योंकि आपने लाइन बैलेंसिंग कर रखी है, हर मशीन हर इक्विपमेंट को जो है प्रॉपर उसकी स्पीड और एवरीथिंग उसके अकॉर्डिंग आपने उसको वर्कलोड दे रखा है, कोई मशीन खाली नहीं चल रही है। ठीक है, तो आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है आपके रिसोर्सेज का। लेस स्किल्ड ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड हेयर, क्योंकि सारा काम मशीन से हो रहा है, उन्हें सिर्फ देखना है। ठीक है, तो ज़्यादा स्किल लेबर की भी ज़रूरत यहाँ नहीं होती है। लो प्रोसेस इन्वेंट्री होती है यहाँ पर, क्योंकि सारा चीज़ तो प्रोसेस में ऑलरेडी कंटिन्यूशन में चल रहा है, तो इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज जो है बेसिकली कम होती हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज़ वेरी लो, क्योंकि आप लगातार बना रहे हैं, फुल कैपेसिटी में बना रहे हैं, जो प्लांट सेटअप किया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही किया हुआ है, तो जो फिक्स कॉस्ट होती है ऑलमोस्ट कम हो जाती है पर यूनिट, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है पर यूनिट वो बहुत कम होती है, लो होती है। डाउन लिमिटेशन, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि इफ़ देयर इज़ अ ब्रेक डाउन इन वन मशीन विल स्टॉप इंटायर प्रोडक्शन लाइन। ठीक है, माना सपोज आप मशीन में बिस्किट्स बन रहे हैं आपके, आपने एक जगह जो है इनपुट डाला आटा, अब आटा जो है आपका गूंदा जाएगा, उसके बाद उसमें कटिंग होगी, मोल्डिंग होगी, दैन उसमें हीटिंग होगी, बेकिंग होगी, दैन उसकी क्या कहते हैं पैकिंग होगी। अब माना बेकिंग ख़राब हो गई, प्रोडक्शन प्रोसेस वहीं रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ से आगे प्रोडक्शन चल रहा है ना, कंटिन्यूशन में मशीनें लगी हुई है, कहीं पर भी अगर एक भी मशीन ब्रेक डाउन हुई पूरी की पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस हॉल्ट हो सकती है, एंड दैट इज़ वेरी कॉस्टली। तो ये इसकी लिमिटेशन है। एंड लाइन लेआउट नीड मेजर चेंजेस विद द चेंज इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन। यहाँ लाइन लेआउट है, मीन सारी मशीन एक दूसरे से अटैच्ड है, तो यहाँ पर क्या है इस लेआउट में प्रोडक्ट डिज़ाइन जो होता है आप लोगों का, अगर आपको चेंज करना पड़ा कभी तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्पेशलाइज मशीन उन्हीं प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने रख रखी है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज दैट पर्टिकुलर लाइन, वो पूरी ऑब्सोलीट होती है फिर। इसीलिए उसी को मास प्रोडक्शन किया जाता है उन्हीं आइटम का जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनकी डिमांड बहुत हाई होती है। एंड हाई इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन फैसिलिटी, क्योंकि स्पेशलाइज मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, जब आप देखते हैं जब कस्टमाइज कोई चीज़ आप बनवाते हैं अपने लिए, तो उसके लिए
आपकी जो कॉस्ट होती है दैट इज़ वेरी हाई। तो वैसे ही यहाँ पर भी, क्योंकि आप बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही बनवा रहे हैं ना वो मशीन, इसीलिए उसकी कॉस्ट भी हाई होती है। तो इट्स रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट। देन साइकिल टाइम इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट ऑपरेशन। यहाँ जो हम साइकिल टाइम डिटरमाइन करते हैं वो हमारा जो सबसे स्लो मशीन चलती है प्रोडक्शन प्रोसेस की, उसके बेसिस में हमारे डिटरमाइन होता है कि व्हाट विल बी द साइकिल टाइम ऑफ द production process. Clear? Okay. Then continuous production is of following types: mass production and process production. Mass production means refers to manufacturing a standardized part and component of a large scale. आप जो है किसी लार्ज स्केल में कोई कंपोनेंट या फिर कोई स्टैंडर्डाइज पार्ट बना रहे हैं, या mass production system offer economy of scale also, and quality of the product tend to be uniform and high due to the standardized and mechanization. Clear? But in process production is carried out on continuously through a uniform and standardized sequence of operation. आप मास प्रोडक्शन में देख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं गुड्स के बारे में कि जो आप बना रहे हैं, कंपोनेंट बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, दैट इज यू आर मैन्युफैक्चरिंग इन अ स्टैंडर्डाइज पार्ट इन अ लार्ज क्वांटिटी। प्रोसेस प्रोडक्शन में क्या होता है, कंटिन्यूसली काम चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आपका सिमिलर है, ठीक है, एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड ऑटोमेटिक मशीन्स आर यूजिंग। process production is employed in a bulky processing of certain material. Like आप देखते हैं जैसे माना पेट्रोल है, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी आपकी है, ऑयल रिफाइनरी में आप जो कर रहे हैं तो दैट इज़ अ प्रोसेस प्रोडक्शन। मीन्स उसकी प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट्स उसके निकलते हैं, मगर फाइनल आपका प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल है, रिफाइंड प्रोडक्ट है, तो वो आपको मिलेगा, बट उसकी बाय प्रोसेस होती रहेगी, ठीक है। लाइक फर्टिलाइजर प्लांट है, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, मिल्क डेयरी है। क्लियर? एंड मास प्रोडक्शन में क्या है, आपके कुछ हार्ड गुड्स होते हैं जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्लियर? देन intermittent production system. We will cover intermittent production system in our next class. Okay, you see the diagram of continuous here. आप देख रहे हैं कंटिन्यूस सिस्टम कैसे चल रहा है, इनपुट है, ऑपरेशन 1 में आया, दीज आर द स्टैंडर्डाइज्ड फिगर यू कैन से, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी फ्लो प्रोसेस चार्ट में, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, प्रोसेस का बॉक्स अलग बनता है, आउटपुट का बॉक्स अलग होता है, वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। ऑपरेशन 1 परफॉर्म हो रहा है माना, सबके सब इंफॉर्मेशन कंट्रोल से और डिसीजन मेकर से कनेक्टेड होते हैं। आप देख रहे हो फ्लो चल रहा है, स्टोरेज 1 में आया, बहुत कम स्टोरेज होती है इन प्रोसेस में, इसलिए ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3, 4, लाइन आप देख रहे हैं पूरी कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, एंड फाइनली आउटपुट विल आउट। इट इज़ कॉल्ड अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। क्लियर? कि इनपुट के बाद सीधे आपके अब आउटपुट आ रहा है एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द सिंगल लाइन। सीक्वेंस में आपने मशीन बना रखी है, सपोज आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यहाँ पर कटिंग हो रही है और आपको दोबारा यहाँ कटिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप वापस नहीं जाएंगे, आप यहाँ दूसरी मशीन सेट करते हैं कटिंग के लिए, मतलब मीन्स बैकवर्ड आपका मूवमेंट नहीं होता इसमें। क्लियर? ओके स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर द डे ओनली, टुमारो वी विल कवर इंटरमीडिएट।